Hi students, welcome back to our channel. Now continuing with the topic of asexual reproduction in plants. Earlier we have studied about the different methods of the asexual reproduction, budding, sporing and various other. Now how the reproduction takes place through vegetative part, that is root, stem and leaf. The reproduction takes place in higher plants through root, stems and leaf. First, the vegetative propagation means plant grows through the vegetative part of a plant, that is either root, stem or the leaf. First of all, under stem we have the underground stem. As you eat potato, tuber, that is the example of the potato. In potato you see you have the potato and in the potato you had eyes over there. आपको इस तरह के पॉइंट्स दिखाई देते हैं, दे आर नोन एज आईज. अगर आप आलू कुछ दिन तक घर में रखें तो आप देखिए उसमें ग्रीन ग्रीन लीव्स आना शुरू हो जाती हैं. They started coming if they are kept for the smaller time, especially the smaller ones. So what? This is potato. When they start coming, each part of this can give rise to the new plant. When they have nodes, internodal region, through the nodal point the leaves arises, as you know already. Nodes and internodes are present, so it is classified under the stem, not as a root, right? That's why it is considered, because it has nodes and internodes present, and through the nodal point the leaves arises. And these leaves आप देख सकते हैं, आलू अगर घर में आपके कई दिनों तक रखा रहा है तो उसमें देखेंगे हरी हरी पत्तियां इनके पॉइंट से निकलती हैं. ये डिप्रेशंस होते हैं, जैसे ऐसे डिप्रेशंस होते हैं, इनमें से आप देखेंगे लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी. तो इसकी वजह से ये लीव्स जो निकलती हैं ये नोडल पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं नोडल पॉइंट से लीव, तो इससे ये ग्रो करता है. अब इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है राइजोम. राइजोम दैट इज द जिंजर. Though here you have to remember only the type and the example. Ginger, here it has the buds. जैसे आप जिंजर देखेंगे ये बर्ड्स होते हैं पॉइंट्स, यहाँ पर आप देखिए बर्ड्स होती हैं. तो these buds, these are buds and this is a ginger. This gives rise to the new plant. अगर जिंजर को आप अनके दें, ये भी नोडल पॉइंट्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और नोडल पॉइंट से लीव्स निकलती हैं और इससे एक नया प्लांट निकलता है. अगर अदरक को आप ज़मीन के अंदर गाड़ के रखें तो उसमें आप देखेंगे उसमें से पानी निकल जाएगा और ये ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व भी रहता है. इसको आप प्रिजर्व कर दें. जिंजर है, ये आपका टर्मरिक है, हिंदी ये जो हल्दी है टर्मरिक है, ये भी राइजोम है, ये भी राइजोम है. बनाना आपके ग्रो करते हैं, जहाँ एक पेड़ बनाना का उगता है उसके बगल से आप देखिए राइजोम से दूसरा पेड़ बनाना का. बनाना में सीड्स नहीं होता है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन राइजोम से ही होता है, वो है राइजोम बनाना का. नेक्स्ट आपका आता है बल्ब. बल्ब जैसे कि आपने देखा है ऑनियन. ऑनियन आप खाते हैं. दिस ऑनियन विच यू ईट, here you had it, here you had the roots, and here from the center that is the terminal bud arises and there you have the leaves. Now here you had scale leaves. These scale leaves, they store the food and this food you are going to eat. These are the roots. This is terminal bud. They are the green leaves. They are fleshy scale leaves. They store the food material. Fleshy scale leaves that store the food material present over there, and this we are going supposed to eat at all. ये fleshy leaves होती हैं जिसको कि हम खाते हैं. That is what in the bulb. आपका ये ऑनियन है, गार्लिक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इसमें. कॉर्न, ग्लैडियोलस, इसमें क्या होता है, ये एक मांस बनाते हैं सब्सटेंस. जिमीकंद आप लोग खाते हैं, हिंदी बोलते हैं जिमीकंद. तो ये जो जिमीकंद होता है ये स्टाउटेड पार्ट होता है. This jimmykanth you have, and from the base
the root portion, this arises. This one, that is what you have. This is called the corm, and they all found under the ground. ये सारे ground के अंदर होते हैं. Corm example gladiolus. This is gladiolus. ये gladiolus है. This is gladiolus found bulb onion. इसके अलावा other stems through which the plants grow, that is the aerial modification. You have seen the doob grass growing under the stem. Doob grass, as this is the earth level, they run parallel to the ground and the leaves arises. As it runs parallel to the ground, so they are known as runners. ये आपका stem है, and these are the leaves. Very fine leaves are there over there. This is known as runner, and this is doob grass. This is the doob grass, and the runner, they had it. They run parallel to the ground. That's why they are known as the runner. Or the second, you have stolon. Under stolon, what you have here also, at the nodal point, they rotate, but here stem forms an arc. This stem is found, and here you have the leaves. Here, example, chrysanthemum, and this is your ground level. Now this arched one, this is called stolon, and that is found in chrysanthemum. In the same way, various herbs are there where you are able to see all these modifications are there. Or vegetative roots. Rooted plant, anyone you take it out along with the roots, that is about, we have studied about the stem. अभी तक हमने stem से पढ़ा कि अलग अलग stem से कैसे plants grow कर सकते हैं. अब इसका next आता है roots. How the different plants, they grow with the help of roots. When we talk about the roots, then what do you see? Guava, sweet potato, they all grow. Any rooted plant, you take it out and plant it on the other place along with the roots. Roots, they are fixed at one place. Again, they are supposed to grow with the new plant on the same way, in the same manner. Where through the leaves? Bryophyllum leaf. Now this bryophyllum leaf, its notches, buds appear on the edges. This is bryophyllum. इसके हर नॉच पर ये bud appear होती है. Small leaves appears on the upper side and small thread-like structures, they appear on the lower side. A bud is fully formed, it detaches from the plant and fall on the ground, and they get the suitable conditions, then they grow. That is through the leaf. Now we have the next method, artificial methods of vegetative. Means artificial method means man-made method. How the man has helped different plants to grow in the different way. Cutting, जैसे आप देखते हैं रोज की कटिंग, कोई भी कटिंग ली, आपका मोरिंगा प्लांट है, आप जैसे सहजन का पेड़ है, सहजन की फली खाते हैं, मोरिंगा ड्रम स्टिक, आप इसकी ब्रांच को लीजिए, दूसरी जगह गाड़ दीजिए, उससे आपका नया प्लांट होगा, आपको कुछ नहीं देखने का. शुगर केन है, गन्ना क्या है? स्टेम, द पार्ट विच यू ईट, इट इज़ ए स्टेम. इस स्टेम को आप कहीं भी गाड़ दीजिए, उससे नया प्लांट लगे. रोज़ की आप स्टिक लेते हैं, आप गाड़ देंगे उसको कहीं से भी, तो नया प्लांट होगा. दैट इज एनी स्टेम कटिंग यू टेक and you in the proper condition, so that will give rise to the new plant through the stem cutting. Layering, layering में क्या होता है? Suppose the big plant is there and it's any one of the branches turns the ground.
श्रब होते हैं, उसकी ब्रांच ग्राउंड में टच कर जाए, एंड दिस ब्रांच अंडरगोज द ग्राउंड, सॉइल पार्टिकल्स आर अबव इट। जैसे ही इसके ऊपर सॉइल पार्टिकल्स आते हैं, ये यहाँ से ये रूट्स ग्रो करेंगे और ये इससे डिटैच्ड होकर के ये सेपरेट प्लांट, इसको बोलते हैं लेयरिंग, जैस्मिन रोज। जैसे प्लांट नीचे हुआ, उसकी डाल नीचे झुकी, ज़मीन को टच किया, और ज़मीन के टच करते ही फिर ऊपर से इसमें बड्स वगैरह लीव्स निकल आई, तब ये जो बड होगी ये नीचे से यहाँ से रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्टेप जनरली जो बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं, उन्हें जैसे रोज़ है, जैस्मिन है, लेमन में भी होता है, लेयरिंग के थ्रू न्यू प्लांट बनता है। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गिव। और इस तरह के प्लांट्स कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव मेथड्स में प्लांट्स ईजी ग्रो करते हैं और फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है, बिकॉज दे ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द मैच्योर्ड प्लांट एंड दे लास्टेड फूड लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? Grafting is the method, the bigger figure, this rose, mango, lemon, fruit plants जो होते हैं, they are perennials, they are trees, they go for several years, हर साल उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। जब पेड़ पुराना हो जाता है तब क्या होता है? एक नया प्लांट, 2 plants are required, 1 is rooted, 1 from the stem cutting is there। जो rooted plant होता है उसे हम कहते हैं स्टॉक, और जिससे हम कटिंग लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, तो ये जो स्टॉक है ये है सियोन। इन दोनों को, एक रूट और सियोन, दोनों को टाइट किया, रस्सी से कस के सुतली से बांधते हैं, बांध कर टाइट करके इसमें वैक्स लगाते हैं जिससे कि फंजाई, फंगस ग्रो ना करे। और रूटेड प्लांट, इसमें क्या होता है, इस जो प्लांट होगा तो इसमें इन दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। दे गिव द ग्रोथ एंड द ग्राफ्टिंग जनरली टेक्स प्लेस इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब अगर मान लीजिए इसको ये है, इसमें हम कई अलग अलग डालते हैं, इसमें होल करके, और इन सब को टाई करते हैं, तो एक ही रोज प्लांट से जो अलग अलग डाल निकलेगी वो अलग अलग तरह के फूल देगी। रेड है, वाइट है, येलो है, पिंक है। तो इस ब्रांच से, एक एक पार्ट के ब्रांच से, और वाइट और येलो या रेड एंड वाइट, द पिंक विल बी ऑब्टेन। क्योंकि जब यहाँ पर ये दोनों मिक्सअप होंगे, ये रेड है, ये वाइट है, तो इन दोनों से जो ब्रांच निकलेगी वो देगी पिंक। जो टिश्यूज कंबाइन करके निकलेंगे, ये ग्राफ्टिंग में होता है। जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जनरली इट टेक्स प्लेस इन द फ्रूटिंग प्लांट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। नाउ दिस वेजिटेटिव मेथड टू ग्रो द न्यू प्लांट्स इज द ईजियर, plants grows faster, less care is taken, same characters are obtained, means the races pure progeny are obtained, same characters are carried from the parents to the offsprings, no new varieties are obtained only in case of the grafting. Some case we ask the another method, that is tissue culture. When we ask about the tissue culture, then this tissue culture, as the word it said, tissue, growing cells are taken either from the tip of the shoot tip or root tip. Anyone, wherever highest growth of meristematic cells are there, that is the highest growth takes place. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की होती है, या तो शूट टिप पर बहुत तेजी से वो डिवाइड होते हैं या रूट टिप होते हैं, तो उस शूट टिप के कुछ सेल्स को लेकर के हम एक न्यूट्रिटिव मीडियम ग्लास जार में रखते हैं। ये है, यहाँ पर हमने मास को रखा, एंड हियर दिस इज न्यूट्रिटिव मीडियम, and this is tissue,
absorbing the nutritive medium containing minerals, hormones, enzymes, whatever they need for its growth. वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे अपनी सरफेस पे, एब्जॉर्ब करके सेल्स ग्रो करते हैं. द ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड इट फॉर्म. व्हेन द ग्रुप्स ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड इट फॉर्म्स, देन इट इज नोन एज कैलस स्टेज. उसके बाद इसका न्यूट्रिटिव मीडियम, इसको हम फिर चेंज करते हैं दूसरे पॉट में. नाउ हियर इट हैज ग्रोन फर्दर. We are going to change, that is the here nutritive medium callus is formed. Now this column, यहाँ तो मिनरल से एब्जॉर्ब हो गए, अब इसको हमें चेंज करना है, तो हमने दूसरा इसको निकाल के दूसरे न्यूट्रिटिव मीडियम में इसको निकाल कर के इसमें डाला. जब इसमें डाला तो ये इसमें फर्दर ग्रोथ हुई. तब इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ प्लांटलेट्स आ जाते हैं. इस ग्रोथ में ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नीचे थ्रेड लाइक, ऊपर लीफ लाइक, नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज प्लांटलेट स्टेज. इस प्लांट, ये नीचे जो होते हैं ये रूट होते हैं और ऊपर जो होते हैं ये लीव्स होती है. मीन्स बड्स आर फॉर्म, दे आर नोन एज प्लांटलेट, स्मॉलर. नाउ आफ्टर दिस मैच्योर्ड, देन दे वर पोर्ड ऑन द ग्राउंड एंड दे वर रूटेड ओवर देयर. तब इसको आप गमले में या ज़मीन में जहाँ कहीं भी लगाना होता, इस प्लांटलेट को यहाँ पर लगाते हैं. इस तरह से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, कम देख रेख की ज़रूरत पड़ती है और ईजिली ग्रो करते हैं. दीज प्लांट्स दे ग्रो वेरी ईजिली, दे रिक्वायर्ड वेरी लेस ग्रोथ एंड दे डू नॉट रिक्वायर मच केयर. द डॉटर सेल्स दे ग्रो फास्टर देन द नॉर्मल वंस. बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, देख रेख की कम आवश्यकता पड़ती है इनमें. और इनके करेक्टर्स और फ्रूट प्लांट्स ये अपने जीन्स को कैरी करते हैं और इसमें फ्रूट फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है. अगर सीड से आप ग्रो करेंगे तो पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसके बाद वो फ्रूटिंग ग्रोथ स्टार्ट. लेकिन इन तरह वेजिटेटिव मेथड्स में छोटा सा ही पेड़ होगा, तभी से उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं. जैसे आजकल आप देखते हैं ऑरेंज है, ये दस है, अनार के पेड़ हैं, आपके आंवले के पेड़ हैं. अगर जो ग्राफ्ट करके आते हैं तो ग्राफ्ट करके पेड़ इतना छोटा होगा और उसमें आंवले लगना शुरू हो जाएंगे. टोमेटो का पेड़ है, छोटा ही सा पेड़ होगा और आपके उसमें बहुत सारे. तो ये सारे ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव मेथड्स के आते हैं. जितने ज़्यादा वेजिटेटिव मेथड्स के होंगे उतने ही ज़्यादा प्लांट्स उसमें और लगेंगे एंड और उसमें उतनी जल्दी फल आएंगे. तो अभी आपने पढ़ा वेजिटेटिव, रूट, स्टेम एंड लीफ एंड योर दस टिश्यू कल्चर. रूटेड प्लांट को आप एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे, प्लांट होगा. स्टेम को आप कहीं से करेंगे तो प्लांट ग्रो होगा, लीफ से करेंगे तो ब्रायोफ्लेम, और इसके अलग अलग मेथड्स होंगे. इन हायर क्लासेस यू विल गो इन मच डिटेल. अप टू क्लास 8 you need only the methods and examples are required for you. That is what all about vegetative reproduction. That is the mode of reproduction, vegetative propagation by the root stem or vegetative propagation in plants is completed in this lecture. Now the next we go through the vegetative propagation in animals. Thank you again. We will meet in the next video.